hi, namaste, Radhe Radhe, Sat Shri Akal. I hope everybody is happy, healthy, and fine. I'm Neha, the owner of Eva Crystal and Jewelry and a website named evaonelifetolive.com. This video is sponsored by evaonelifetolive.com and you can get a lot of crystals from there. I'm doing this love reading for the February Valentine's week and I hope you like it and enjoy it. So it's already February and Valentine's week is here. So now we'll start with the Valentine's Day reading. If you're watching this video before 7, then this is definitely for you. So this is the first one. Just choose the cards intuitively. अगर जो भी आपको पसंद है, जो भी cards आपको पसंद है, you can choose them or you can go with the stones. Like this is rose quartz bracelets. This is make a wish tree of rose quartz, and of course this is rose quartz square. So choose any of these three intuitively and then decide which is your option to choose. And I'm going further with the love reading and choose any options 1, 2 or 3. So first we'll be going with the bracelet and these are the cards which are already out. I'm going to take out 4 cards and see what is your guidance for the Valentine's week. Okay. Great. So the guidance that is coming from angels and the universe is that there will be some kind of an argument between you guys and you have to overcome it through your own emotions and your own आपको खुद पूरी कोशिश करनी पड़ेगी कि आप उस आर्ग्यूमेंट से ओवरकम करें बिकॉज the time is not very good for you guys, but anyways the universe is always telling you to always support each other, and even if the arguments happen, he is there with you, supporting you throughout and telling you that जो आसपास वाले लोग हैं अगर वो आपको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या अगर कोई बैड इन्फ्लुएंस है जो आपकी लाइफ में आ रहा है उस पर कॉन्सेंट्रेट ना करें, रादर देन कॉन्सेंट्रेट कि आप जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, उस पर कॉन्सेंट्रेट करें एंड बिलीव इट टू बी अ वेरी पॉजिटिव टाइम एंड बिलीव कि जो आप अगर कोशिश कर सकते हैं या अगर आपकी कोशिशें हैं तो आप किसी भी चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं. यूनिवर्स आपको पूरी स्ट्रेंथ दे रहा है, आपको ये बता रहा है कि यू कैन ओवरकम एनी सिचुएशन इन योर लव रिलेशनशिप एंड यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ. Now we'll go through the second cards. See, the card that is coming is window. Romance. Okay, so now the second thing coming is a new adventure in love is coming. Get ready. The second card was heartbreak is a part of the human experience, it will pass, and romance, that is romantic surprises are on the horizon, be open to them. So now understand the thing what universe is telling you that अगर heartbreak होता है या मे भी ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के बीच में एक छोटी सी आर्ग्यूमेंट हो और उसके बाद आप आगे बढ़ें, उस चीज़ को सॉल्व करें एंड देन यू रियलाइज़ कि जो एक छोटी सी आर्ग्यूमेंट थी वो आपको कितना क्लोज ला सकती है, आपके जो लाइफ में एक ब्यूटीफुल चैप्टर है वो ला सकती है, आपकी लाइफ में एक विंडो खुलेगा जिसमें डेफिनेटली बहुत सारा प्यार है, रोमांस है, एडवेंचर है, एक रोमांटिक सरप्राइज भी है. मे बी उस रोमांटिक व्हाट आई एम थिंकिंग इज़ कि देयर इज़ आपके बीच में एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है जिससे आपको ये पता चले कि the surprise was actually planned for you but not for someone else. So try to understand someone else also. मतलब मैं चाह रही हूँ कि आप लोग एक दूसरे के बीच में जितना भी अगर कुछ इशू है या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या ऐसा कुछ क्रिएट हो रहा है, try to solve it because definitely universe is blessing you. Even that after आप लोगों का एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट होगा उसके बाद भी universe is blessing you with true love. मोहब्बत दे रहे हैं and I just hope कि आपका जो छोटा सा आर्ग्यूमेंट भी हो वो आप लोग ओवरकम कर लें. स्टबनली उस चीज़ से ना डील करें प्लीज़, एक दूसरे के साथ स्टबन ना हो बिकॉज इफ़ यू आर स्टबन तो आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व होने की जगह और बिगड़ सकता है. तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि आप लोगों को एक दूसरे से मोहब्बत करके, एक दूसरे से डिस्कशन करके उसी तरह आगे बढ़ना है एंड लुक इनटू दिस फॉर श्योर दैट आप एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हैं और खुश रहने की पूरी कोशिश करें.
So now I'm going for another third thing, that is, this is the universe guidance card, and I'm thinking कि universe का जो exact guidance है 17 self belief. Okay, so the card is also telling you that you need to self believe. आपको अपने ऊपर believe रखना पड़ेगा, आपको ये believe करना पड़ेगा कि आप जो सोच रहे हैं और जो समझ रहे हैं एक दूसरे के बारे में, आपको एक दूसरे पे भरोसा रखना पड़ेगा. And now the card is telling me self-care and self-belief. Self-belief, confidence, hope, change, courage, leap and path forward. So universe, the cards are exactly same. वो आपको यही बता रहे हैं कि आपको जो है अपना courage और अपना एक लीप ऑफ फेथ, जो एक बोला जाता है कि हम इस बंदे पे या इंसान पे भरोसा रखते हैं, उस भरोसे को ही आगे बढ़ना है. So the self-belief card tells me you may feel stuck on fearful, perhaps even despair, thinking there is no way forward. This card reassures you that the path starts with you. You are ready for a life-changing leap forward. What you need to do is identify one area where you feel stuck and take small but significant step towards the overcoming this obstacle. Believe in your ability to create changes you desire. अगर somehow मुझे अभी एक ये चीज़ भी लग रही है, अगर कुछ ऐसा मे बी इन पास्ट वन ऑफ योर एक्स जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो मे बी कमिंग टू सम ऑफ द पीपल, कि वो जो एक्स है उसके साथ आपकी जो एक आर्ग्यूमेंट पे आपकी जो एक लड़ाई हो गई थी और उस पर आपकी ख़त्म हो गई थी, आपको क्लोजर नहीं मिला था, बट स्टिल यू हैड अ फाइट विद दैम. सो मे बी वन ऑफ योर एक्स इज कमिंग बैक इन योर लाइफ एंड गिविंग यू अ ब्यूटिफुल सरप्राइज एंड टेलिंग यू दैट आई हैव रियली लव्ड यू सिंस लॉन्ग, और मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और आप जो हैं प्लीज़ मुझ पे वापस से एक बार भरोसा करें और लाइफ में वापस से मुझे एंट्री दें. सो दिस लास्ट कार्ड टेल्स मी सेल्फ केयर, रेस्ट, nourishment, relaxation, boundaries, rejuvenation, healing and peace. It's okay to prioritize yourself and take time to rest. Cancel plans if they are overwhelming and instead recharge with a cozy evening. Nourish your body with good food, sleep and relaxation. What you need to do is identify one area where you feel stuck and take a small, significant step forward, overcoming this obstacle. Believe in your ability to create change you desire. Okay. Oh my God, if you could see the self-care and self-belief दोनों का जो डिक्लेरेशन है, जो यूनिवर्स की तरफ से आपको हिंट है, वो दोनों सेम है. So it's for sure, very much sure that now you have to take care of yourself. आपको अपने बारे में भी सोचना है. जब भी आप प्यार करते हैं तो सेल्फ केयर और सेल्फ लव के बारे में भी सोचें और बिलीव करें कि आपकी जो प्यार है, जो आपका मोहब्बत है, वो आपके पास एक बहुत प्यारा सा सरप्राइज़ लेके आएगा. आपको खुद पे भरोसा करना है, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और अपने आप से ज़्यादा किसी और पे जो आप अगर रिलाई कर रहे हैं कि आपको वो ज़्यादा खुशियाँ देगा, तो दैट इज़ अ नो. ऑफ कोर्स आपको अपने ऊपर पूरा ध्यान देना है और जब भी आप आगे बढ़ने की सोचें लाइफ में, जस्ट टेक अ स्मॉल स्टेप बैक एंड थिंक अबाउट द एक्सपीरियंसेस और फिर आगे बढ़ें. डेफिनेटली सम सरप्राइजेस आर कमिंग टू यू गाइज. आपके आर्ग्यूमेंट्स ख़त्म होने वाले हैं और लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है. So now this reading is for the people who chose rose quartz का make a wish tree and let's see आप लोगों के लिए क्या guidance आती है यूनिवर्स की तरफ से. Let's go with it. I'll take out first 4 cards and see आपको यूनिवर्स किस तरह bless कर रहा है वैलेंटाइंस वीक में और हम लोग क्या expect कर सकते हैं आप लोगों के लिए. Okay. So the cards are telling me for the people who chose the group 2, उनके लिए मैं बोलूँगी कि आपके लिए बहुत प्यारी सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं यूनिवर्स की तरफ से. आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स, तोहफे और
एक तरह से दे सकता है। अगर जो लोग सिंगल हैं, फॉर सम रीज़न आई बिलीव ये जो सिंगल लोग हैं उनके लिए रेजोनेट करती हूँ, जो तब फॉर सम रीज़न आई फील कि जो सिंगल लोग हैं उनकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। या अगर आपका कोई कमिटमेंट है, अगर आप चाह रहे हैं कि आपका कोई कमिटमेंट अटका हुआ है या आपके लव रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं हो पा रही है, फाइनली यू विल गेट अ कमिटमेंट। आप डेफिनेटली कमिटमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जो सिंगल लोग हैं उनकी लाइफ में लव आ रहा है, और जो लोगों की लाइफ में लव है वो चाह रहे हैं हम अपनी रिलेशनशिप को और आगे बढ़ाएं, कमिटमेंट के बाद थोड़ा और शादी के बारे में सोचें। डेफिनेटली मैरिज इज़ ऑल्सो ऑन द कार्ड्स, सो बिलीव इट टू बी अ वेरी पॉजिटिव साइन, क्योंकि आपकी लाइफ में नाउ यू विल गेट all kind of stuff. You can also get houses, you can get all the positive things in your life. आप लोग को बस बिलीव करना है यूनिवर्स पे, आपको ये बिलीव करना है कि वॉट एवर इज़ कमिंग योर वे इज़ कमिंग टू यू इन अ वेरी पॉजिटिव वे। समटाइम्स यू नो द चेंजेस इन लाइफ कम्स एज अ डिस्गाइज। तो आपको बिलीव करना है कि अगर हमारे लाइफ में कुछ अगर एज अ डिस्गाइज थिंग भी आती है, या हमारी लाइफ में अगर हमको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं जो हमको प्रॉब्लम कर रही हैं, बट दैट आर एक्चुअली ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, यू हैव टू कीप कंप्लीट फेथ ऑन यूनिवर्स और बिलीव करना है दैट लॉट एंड लॉट ऑफ लव्स एंड लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स आर कमिंग योर वे। जो लोग सिंगल हैं उनके पास डेफिनेटली मोहब्बत आ रही है, और जो लोग ऑलरेडी कमिटेड हैं उनके पास एक कमिटमेंट आ रहा है। मे बी दिल गेट इंगेज सून बाय दिस वैलेंटाइंस वीक या उसके बाद। सो एक्सपेक्ट अ प्रपोजल और expect it to be very nice and very beautiful. Now we'll go towards the second rack of the card. देखें आपके लिए क्या आ रहा है guidance. Let's see what is the guidance coming for you. Okay. Nurture, celebrate. Oh my God! See the celebrate. So the celebration is coming. Definitely आप लोग की लाइफ में commitments आ रहे हैं for sure. Unseen. Love can be blind and sure you're not overlooking red flags. Oh, so a sign is also coming from universe कि आप सब कुछ करने में इतना मत घूम जाना कि आपको ये realize ना हो कि कई बार जो है हम लोग बहुत अच्छी चीज़ें या बहुत बुरी चीज़ें भी इग्नोर कर देते हैं. So take deep breath and then take a decision while the celebration is definitely on your chart. आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आने वाला है. एज आई टोल्ड यू द कार्ड्स वर टेलिंग मी फर्दर कि आपकी लाइफ में कमिटमेंट आ सकता है. आपकी लाइफ में डेफिनेटली कमिटमेंट, सेलिब्रेशन, या फिर आपकी लाइफ में यू कैन ऑल्सो गो फॉर वेडिंग बेल्स फॉर श्योर. टुडे सेलिब्रेट द लव यू शेयर विद दोज हु मैटर मोस्ट. The second card that came was nurture. So nurture your relationship like blooming flower, they'll flourish. आपको अपने ऊपर भरोसा करना है, इस चीज़ में बिलीव करना है कि आपका जो प्यार है, लव है, उस चीज़ में आपकी जो रिलेशनशिप है जो है वो फ्लावर की तरह फ्लरिश करेगी. बस आपको उस चीज़ पे बिलीव करना है, उस चीज़ को नर्चर करना है. आपकी लाइफ में आपको जब आगे बढ़ना है तो वो ये सोच के बढ़ना है कि हमको जो है अपनी लाइफ में एक कमिटमेंट की तरह ही आगे बढ़ना है. डू नॉट गिव एनीथिंग इन मिडल ऑफ इट. अपनी लाइफ में वैसे ही आगे बढ़ें एंड डेफिनेटली यूनिवर्स विल कम and bless you with lot and lot of blessings. It may be wealth, it may be lot and lot of love, and जो celebration है आपकी लाइफ में for sure है. Now let's see आपको यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं through this cards. So the first guidance that came was self-reflection. Okay. Ignite your spark. Introspection, evaluation, clarity, self-awareness, energy, change, and growth. See, the cards are telling me, this stack is telling me that you need to take very aware step towards the future. आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है, ऐसे ही गिवन नहीं करना है. Think before you take any final decision. So that is also coming. For some of the people, आप बहुत सोच समझ के डिसीजन लें, but for some of the people, definitely celebrations are coming. So the universe is telling you, take time to self-reflection, evaluate the areas in your life that drain your energy and decide what needs to change to restore your happiness.
तो अपनी लाइफ में आप सेल्फ रिफ्लेक्शन देखें, आपसे जो भी कहीं पर गलतियां हो रही हैं छोटी मोटी, उस चीज़ पे ध्यान दें और उसके बाद लाइफ में वैसे ही उस चीज़ को पॉजिटिव लेकर लाइफ में आगे बढ़ें. Ignite your spark. Spark inspiration, opportunity, joy, new beginnings and positivity. See, the card is telling me new beginnings. So of course आप लोग की लाइफ में जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में हो सकता है बहुत जल्दी एक बंदा आए या बंदी आए, और जो लोग ऑलरेडी कमिटेड हैं उनकी लाइफ में एक फाइनल कमिटमेंट आ जाए. इट कुड बी मैरिज, इट कुड बी एंगेजमेंट. Focus on your needs and desire with joyful attitude. New opportunities, friendship, or even family additions may be on the horizon. Embrace the positive energy to speed up the process. So the universe is always, always, always telling you that you need to stay positive in whatever the situation you are. You have to understand that blessings come in disguise and you have to feel always, always, always blessed. और अपने आप को उसी तरह से आगे लाइफ में आगे बढ़ना है. उस चीज़ को आगे सोच के ही वैसे यू हैव टू कीप योर सेल्फ पॉजिटिव एंड टेक द डिसीजंस ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट रादर देन बीइंग नेगेटिव एंड सैड अबाउट इट. दिस इज फॉर द पीपल हु चोज द थर्ड स्टैक और द स्फीयर, द क्रिस्टल स्फीयर. देखें रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल फिर आपके लिए क्या लाता है. Okay, wow. So the third stack is telling me that commitment is coming your way. जिसकी शादी हो चुकी है उनकी लाइफ में डेफिनेटली बेबीज आने वाले हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी लाइफ में कमिटमेंट आने वाला है, और जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में एक बंदा या बंदी आने वाली है एंड विद अ वेरी 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 चार्मिंग पर्सनैलिटी. सो द कार्ड्स आर टेलिंग मी ओवरऑल, जिसने भी थर्ड स्टैक चूज़ किया था उनका लिए बहुत बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं. वो ये बता रहे, कार्ड्स आर टेलिंग मी दैट यू आर वेरी मच इन लव. आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं. बी वाइज, ऐसा नहीं हो कि आप ब्लाइंडली सारे डिसीजंस ले लाइफ में, बट यू हैव टू ऑलवेज बिलीव इन यूनिवर्स. आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपकी लाइफ में कमिटमेंट आ रहा है, प्यार आ रहा है, मोहब्बत आ रही है, आपकी लाइफ में एक चार्मिंग बंदा या बंदी आ रही है. द कार्ड्स आर डेफिनेटली टेलिंग मी दैट यू आर going to fall in love, madly, crazily in love. और आपकी लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव आने वाला है, बहुत कुछ पॉजिटिव, बहुत कुछ प्रॉम्प्ट एंड पिन. आप खुद भी सरप्राइज हो जाएंगे आपकी लाइफ में इतनी सारी ब्लेसिंग सडनली यूनिवर्स कैसे दे रहा है. सो द ग्लास, जो आपके ग्लासेस सारे खाली पड़े थे या आपकी जो लाइफ में एक कहीं पर शायद कुछ छोटी मोटी नोकझोंक हो रही थी, आर्ग्यूमेंट्स हो रही थी, वो फाइनली सेटल डाउन होगी और आपकी लाइफ में बहुत सारा प्यार आएगा. इनफैक्ट some of the people may get some surprises as well from the universe. आपको जो ब्लेसिंग्स आई यूनिवर्स की तरफ से वेरी सडनली आएगी, और जो आपका लवर है ही, दैट पर्सन मे सरप्राइज यू विद वेरी वेरी ब्यूटिफुल गिफ्ट. आप खुद भी सडनली सरप्राइज हो जाएंगे कि व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स, ओह माय गॉड, दिस इज़ अ वेरी गुड सरप्राइज आई एम गेटिंग राइट नाउ फ्रॉम हिम और हर. एंड डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हैं. फॉर दिस वैलेंटाइंस वीक यू आर गोइंग टू बी वेरी 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 हैप्पी, thoroughly happy. Now let's see what our cards telling me further.
Okay. See, that's what I'm telling you. Spend some time alone, it will help you gain clarity on your relationship. ओके, सो मैंने पहले ही कार्ड्स बताया था रेजोनेट करते हुए कि डेफिनेटली आपको जो है सोच समझ के डिसीजन लेना है लाइफ में, बिल्कुल ब्लाइंडली डिसीजंस नहीं लेने हैं. अपने आप को टाइम दें, थोड़ा क्लियरली सोचें, उसके बाद ही डिसीजन लें. बट डेफिनेटली समथिंग वेरी वेरी बिग इज़ कमिंग टू योर वैलेंटाइंस. आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है. आपकी लाइफ में इवन अगर द यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि आप जो छोटे छोटे जो प्लेजर्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में उसे इग्नोर ना करें, पॉजिटिव रहें, उस चीज़ को एक्सेप्ट करें और फिर आगे रहें, आगे बढ़ें उसी चीज़ में. ना कि आप बड़े की चाह में जो छोटे छोटे जेस्चर्स आपका पार्टनर कर रहा है उसे इग्नोर कर दें. सो ऑलवेज कीप दैट इन माइंड कि आपकी लाइफ में जितनी भी छोटी छोटी खुशियाँ हैं उन्हें बटोर के एक बड़ी सी खुशी बन सकती है. ना कि बड़ी खुशियों के चक्कर में हम लोग छोटी छोटी खुशियाँ, छोटे छोटे जो मोमेंट्स हैं उनको इग्नोर कर दें. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी है उसे बहुत अच्छे से ब्यूटिफुली नर्चर करें, आगे बढ़ें लाइफ में. The last card that is telling me is trust. Guard your heart. Not everyone deserves your trust. Okay. So now universe is also telling you कि आप जो हर किसी पे भरोसा कर लेते हैं उस चीज़ का भरोसा ना करें. आप सोचें, समझें, डिसीजन फिर ही लें लाइफ में, ऐसे डिसीजन ना ले लें. द यूनिवर्स आपको ये भी बोल रहा है, stop dwelling on problem you cannot solve or situation that bring you down. Embrace gratitude and reciprocity for what life offers, and you will align with your soul's desire. Wow, what a card. यूनिवर्स आपको बता रहा है प्रॉपरली, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस दे रहा है कि आपको ये चीज़ समझनी है कि जो यूनिवर्स है वो आपको हमेशा ही ब्लेसिंग्स देने वाला है. आपको कभी भी उस चीज़ को निगेटिवली नहीं लेना है, गलत नहीं लेना है. उस चीज़ को कभी भी ये सोच के नहीं लेना है कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों होता है. तो यूनिवर्स इज ऑलवेज विद यू, आपको कॉन्स्टेंटली गाइड कर रहा है और आपको ये बोल रहा है कि यू जस्ट हैव टू स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल. नथिंग रॉन्ग इज कमिंग योर वे. Keep the faith, hope, resilience, trust, optimism, faith, and endurance. No matter how tough things get, remember that hope always exists. Your angels are guiding you through these challenges, reminding you that the brighter days are ahead. Oh my God, what a blessing! यानी कि एंजल्स भी आपके साथ हैं, आपके लव कन्फेशंस में, आपके मोहब्बत में, आपकी जो भी आर्ग्यूमेंट्स हैं उसमें आपको कॉन्स्टेंटली यूनिवर्स आपको ये गाइड कर रहा है कि मैं जो हूँ आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ कॉन्स्टेंटली हूँ. आपको बस अब मेरे पे फेथ रखना है, आपको बिलीव रखना है कि मैं जो हूँ आपके साथ हूँ, आप पे पूरा ध्यान दिए हुए हूँ, आपका प्रोटेक्शन कर रहा हूँ और जो गाइडिंग एंजल्स हैं वो भी आपको टोटली साथ में हैं. एनलाइटनमेंट, ब्रेक थ्रूज, success, emptiness, spiritual growth and transformation. Some good transformation is coming your way. Universe is telling you कि आपके इश्क मोहब्बत में कुछ न कुछ थोड़े बहुत चेंजेस आने वाले हैं. आप लोग ग्रो करने वाले हो, आपकी लाइफ में सक्सेस आने वाला है, आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रूज आने वाले हैं और आपकी लाइफ में बहुत कुछ ब्यूटीफुल आने वाला है. आप लोग जो है यूनिवर्स को एक्सेप्टेंस दें, सरेंडर करें, लेट गो करें चीज़ों को और क्लैरिटी और विश्वास के साथ लाइफ में आगे बढ़ें. बिकॉज यूनिवर्स आपको ये कॉन्स्टेंटली बता रहा है कि चाहे कुछ भी हो लाइफ में, आप बिलीव करें यूनिवर्स पे. आप ये समझें कि जो यूनिवर्स है आपको पूरी तरह से एक प्रॉपर प्रोटेक्शन बोल में या प्रोटेक्शन ग्लोब में आपको लिए हुए हैं और आपको एक पूरा का पूरा प्रोटेक्शन गाइडेंस और ये बता रहा है कि आपको मूव फॉरवर्ड करना है, हमेशा ही मूव फॉरवर्ड करना है, बट विद अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड. हमको नेगेटिव लाइफ में या नेगेटिविटी लेके आगे नहीं बढ़ना है. आपको जो है अगर आपकी लाइफ में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, बिकॉज यूनिवर्स इज टेलिंग लेट गो ऑफ द पास्ट. आपकी लाइफ में अगर कुछ आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं आप लोगों के बीच, कपल के बीच, या ऐसा कुछ हुआ है जिसको आप कभी फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज़ के लिए यूनिवर्स आपको ये बोल रहा है इट्स हाई टाइम टू लेट इट गो. उस चीज़ को भूल जाएं, उस चीज़ को छोड़ दें पीछे, सामने वाले को माफ़ी दें, हील करें और लाइफ में आगे बढ़ें. बिकॉज दैट्स हाउ रिलेशनशिप. आपको कई बार ऐसी चीज़ें माफ़ करनी पड़ती हैं जो कि आप समझते हैं माफ़ी लायक नहीं है, या फिर हमको ऐसा लगता है कि अरे मुझ साथ बहुत गलत हो गया है. बट समटाइम्स येस, you have to understand that forgiveness is the best gift you can give someone else. So आप लाइफ में जो भी आपकी लाइफ में कुछ भी बुरा हुआ है, गलत हुआ है, उस चीज़ को लेट गो कर दें और अपने आप को खुश रखें, आगे वैसे बढ़ें और जो है
अगर आपकी तरफ एक माफ़ी आ रही है, आपकी तरफ अगर ऐसा सामने वाला इंसान माफ़ी मांग रहा है, तो आप उसको माफ़ करें और लाइफ में स्टबनली डिसीजन न लेके बल्कि पॉजिटिव डिसीजन लेके आगे बढ़ें। टेक चार्ज, एम्पावरमेंट, इनिशिएटिव, लीडरशिप, सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड इम्प्रूवमेंट। आपको इम्प्रूवमेंट करना है। आप जैसे भी आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस आ रही हैं, आपको उस चीज़ में इम्प्रोवाइज़ करना है। आपको ये बिलीव करना है कि मैं जो अगर चाहूँ तो दुनिया में हर चीज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आपको ये बिलीव करना है कि इवन इन रिलेशनशिप यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट जो भी चीज़ें हैं हम दोनों को साथ में लेके चलना है। हम दोनों को कभी भी एक दूसरे को हर्ट करके नहीं चलना है या एक दूसरे के साथ गलत करके नहीं चलना है। ये चीज़ में बिलीव करना है हमको कि जो लाइफ में जितनी भी चेंजेस हैं, जितना भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, जितनी भी कुछ चीज़ें हैं, वो आपको लाइफ में बहुत पॉजिटिव वे में आ रही है। यू आर डेफिनेटली गेटिंग सम ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। यू जस्ट हैव टू बिलीव इन यूनिवर्स, कीप कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर। कोई भी अगर सोल्यूशन नहीं मिल रहा है किसी प्रॉब्लम का, तो यू हैव टू स्टार्ट कम्युनिकेटिंग ईच अदर और उस कम्युनिकेशन को गैप को फिल करते हुए आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। और उसी तरह आपकी लाइफ में एक better mornings are coming and better days are coming, and universe is definitely blessing you and telling you that you have to believe in the positivity, gratitude, and you have to believe in your life, yourself, and you have to give up on the past and for the past mistakes। आप खुद को भी माफ़ करें, सामने वाले को भी माफ़ करें और लाइफ में मूव ऑन करें एंड ट्राई टू बी मोर हैप्पी इन दैट रिलेशनशिप यू आर। डेफिनेटली सम ऑफ द पीपल आर गेटिंग लॉट एंड लॉट ऑफ कमिटमेंट। कुछ लोगों की लाइफ में जो सिंगल्स हैं उनकी लाइफ में एक बहुत चार्मिंग बंदा या बंदी आने वाली है जो कि दैट विल स्विप यू अवे फ्रॉम योर फीट एंड यू हैव टू बिलीव दैट आप जो डिसीजंस लें पॉजिटिव होकर रहें, सोच समझ के लें और लाइफ में आगे बढ़ें। सो दिस इज़ अ रीडिंग फॉर February Valentine's week, and I hope you have a very, very, very good Valentine's week and enjoy yourself. Lots and lots of love and lots of blessings from universe to you guys. Okay, bye.